Get set, play. राष्ट्रीय खेल केरला 2015। नमस्कार, केरला फ्लेवर्स का आज का अंक लेकर हाजिर हूँ मैं महेंद्र सिंह लालस। सेंट्रल प्रोडक्शन टीम आकाशवाणी के प्रतिनिधि 35वीं राष्ट्रीय खेलों के हर पल की खबर लेने और देने के लिए तत्पर हैं इस खूबसूरत प्रांत के हर कोने कूचे में। आज की सबसे पहली स्टोरी लेकर आई हैं माधवी रविंद्रनाथ। Speaking to us of Malayalam cinema is Beena Paul, director of the Elvi Prasad Film Institute, Thiruvananthapuram. In 2014, in the language Malayalam, there have been about 140 films produced in the state. This is one of the largest in any state in India and goes to show how prolific and healthy the industry is in Kerala. Kerala always had a reputation of producing very interesting cinema. Not only do we have the very commercial kind of film, but we also have had over the years with people like John Abraham, Arvindan, Adur Gopalakrishnan, Shaji and Karun. We've also had the art house cinema, which has been very, very internationally acclaimed and recognized. Apart from which, we also have what is called the middle road cinema, which is films by people like Padmarajan, etc., with strong stories, also done very well commercially. But the new trend we see is that there are a lot of youngsters now with the coming of digital technology. I think the exposure to world cinema through the International Film Festival of Kerala, we see that there are lots of youngsters now coming up and taking up filmmaking. And these films seem to be well influenced by international trends. You see that they are experimenting with narrative form, with characters, with stories. So it's a very interesting time in Malayalam cinema. And the other thing about Malayalam cinema is that we have had the most wonderful technicians, starting from Santosh Shivan to Venu, to Mohan, to Murli, to Shaji and Karun, Ramendra Babu. These are all people who have really made their mark technically, not only in Kerala, but all over India and perhaps the world also. So, on the whole, one can say that Malayalam cinema is a very vibrant, interesting industry. Unlike other industries you find perhaps in Bengal or Maharashtra, you find that Malayalam cinema is always reinventing itself and trying to find new idioms and this has a lot to do with also the International Film Festival of Kerala. From a very young age, a lot of people the festival is now 19 years old and from a very young age, people are exposed to world cinema and seeing all kinds of trends all over the world. So I think this is now slowly affecting the way they make their own films. Also films like Ramu Karyat's Chemmin, which was the first film to win the national award from Kerala. That film seemed to have caught the imagination of so many people. So Chemmin, interestingly, even used missions from outside Kerala and told quite a universal story and has been always remained one of the films that Kerala is known for. Kadalinakkare ponore kaana punninu ponore kadalinakkare ponore kaana punninu ponore poi varumbol endu kondu varum kai niraye poi varumbol endu kondu varum। दक्षिण भारत में हैं हम और दक्षिण भारत और खास तौर पर केरल की लजीज व्यंजनों की बात तो हम लगातार करते आए, लेकिन आज दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय खाने की खोज में निकले हैं अनुपम पाठक। मेल जोल कैसे बढ़ता है? जाहिर है मिलने जुलने से। न सिर्फ व्यक्ति बल्कि सोच और आचार विचार भी मिलते हैं तो फिर और पनपते हैं। व्यंजनों के मामले में भी ऐसा ही मिलन है हमारे देश में। उत्तर के व्यंजनों का दक्षिण से और दक्षिण के व्यंजनों का उत्तर से। उत्तर भारत के किसी शहर, बड़े ही नहीं छोटे छोटे नगरों में भी ढेरों दक्षिण भारतीय रेस्तरां मिल जाएंगे और इनके मुरीद भी। तो यहाँ दक्षिण भारत में भी जाने कितने ऐसे फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पर भीड़ लगी रहती है उत्तर भारतीय व्यंजनों को चखने वालों की। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसकी दोस्ती दोनों ही व्यंजनों से हो और खूब हो तो फिर कहना ही क्या। मिलवाता हूँ तिरुवनंतपुरम में रहने वाले दंपति उषा और राजीव से। वे 15 बरस तक भुज में रहे हैं और दोनों प्रकार के व्यंजनों के रसिया हैं। उषा जी से हमने पूछा कि इतना स्वादिष्ट खाना वो कैसे बनाती हैं। थोड़ा अलग से पकाती हूँ इसलिए सादा मसाला डाल रहे, फिर भी थोड़ा अलग से बनाती हूँ। ज्यादा नारियल तो ज्यादा डालते हैं हम लोग, इसलिए तो अच्छी बनती है। क्या कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पर घूमने जरूर आ जाएं
गॉड्स ओन कंट्री में आकर रह करके यहाँ का खाना पीना रहना सहना सब कुछ एक बार आजमा कर जाए। हमारे पास अभी भी नॉर्थ इंडिया में बहुत फ्रेंड्स वगैरह आते रहते हैं। जब वो लोग उत्तर भारत में थे तो क्या सिखाया उन्होंने वहाँ के परिचितों को? मेरे को केरला से ज्यादा नॉर्थ इंडिया में अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों को सिखाया, बोल दो चटनी बनाना। बहुत लोगों को सिखाया चटनी बनाने के लिए। हमारी इधर का सांबार तो अलग बनता है, बहुत अच्छी बनता है। वो सांबार बनाने के लिए भी मैं बहुत अलग अलग पैसे। और बदले में कुछ सीखा भी होगा। खिचड़ी, खीर, हलवा। मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए नॉर्थ इंडिया में सीख लिया। गाजर का हलवा बनाने सीख लिया। अच्छी तरह मैं बनाती हूँ अभी। मेरे बच्चों को जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है ये गाजर का हलवा। इनका पराठा बहुत अच्छी बनती है, आलू की परोठा, मेथी परोठा। एक कहावत भी है ना कि दिल जीतने का रास्ता पेट से होकर जाता है, और व्यंजनों का यह मेल तो पूरे भारत का दिल जीतने का मादा रखता है। केरला फ्लेवर्स के लिए मैं अनुपम पाठक। आइए अब चलते हैं तिरुवनंतपुरम से कन्नूर, हमारे साथी शाहिद अनवर के साथ। ये 4 महीने के नन्हे अभिनव की आवाज है जो अपनी दादी माँ के गोद में है। साथ में दादा और माँ भी हैं। ये सभी इंडोर स्टेडियम कन्नूर के प्रवेश द्वार पर बने 35वें नेशनल गेम्स के मैस्कट अम्मू के पास तस्वीर खिंचवा रहे हैं। फ्लैश की रोशनी और उमस ने अभिनव को परेशान कर रखा है, लेकिन ये खास मौका है। ये तस्वीर यादगार होगी। दादा शैलेंद्र नाथ कहते हैं कि जब ये बड़ा होगा तब इसे दिखाएंगे। हम लोग इसलिए अभी पोता को इसलिए लेकर आया, थोड़ा फोटो खींचेगा, क्योंकि इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग को बोल सकता है। 35th गेम्स का स्टार्टिंग में हम लोग गया था, ये तुम्हारा फोटो है, इसका इसके लिए हम इसके लिए कराया। अभी स्टेडियम के पास ही रहने वाले शैलेंद्र नाथ नौकरी मुंबई में करते हैं, लेकिन कन्नूर में हो रहे नेशनल गेम्स के ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनने के लिए वो यहाँ आए हैं। ये भी कहते हैं कि उनकी सास जो 85 वर्षीय हैं, उन्हें भी इस स्टेडियम को दिखाने के लिए लाना चाहिए था। बहू राखी कृष्णा बहुत खुश हैं और रोमांचित भी। उन्हें गर्व हो रहा है कि कन्नूर राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा है। It's awesome. The construction, the lighting, the camera settings, everything is very good. Because everywhere we have been seeing in papers like national games हो रहा है, but only now I am able to see it where it's happening and how it's happening. It's very wonderful. I'm feeling proud actually. Being a Kannur citizen, feeling real proud. लेकिन शैलेंद्र नाथ को इस बात का अफसोस है कि यहाँ इस अवसर से जुड़ी चीजें नहीं मिल रही जिसे यादगार के तौर पर रखा जा सके। हम लोग वही पूछा, कोई टी शर्ट नहीं, कोई सॉवरेन, कोई सॉफ्ट टॉयज का जैसा कुछ भी ये लोग के पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोग एशियन गेम्स कतर में पार्टिसिपेट किया था। हम लोग 2-3 और एक्स लाया, अभी भी हमारे घर में पड़ा है वो। क्यों समथिंग हम कन्नूर में आएगा, सब आदमी ले लेगा ना। हम 10 साल के बाद भी बोलेगा, अरे हम कन्नूर में नेशनल इसके लिए गया था, उस समय ले आया इसका। नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट ये लोग ऐसा कुछ करना है, क्योंकि कुछ भी हो, छोटा है बड़ा है कुछ भी हो, मगर कुछ न कुछ होना है। फिर हम लोग का मेमोरी 50 साल के बाद भी मेरे को मालूम होएगा, हम इसके लिए इसका वजह से इसको लाया, क्योंकि जब बड़ा होएगा फिर भी इसको बोल सकता है ओपनिंग के टाइम में तुम इतना महीना करता, तुम इधर आया था। वैसे राखी ने कहा कि अम्मू के साथ खींची गई तस्वीर ही पास में रखेंगी। Anyway, we have some pictures, nice pictures captured near Ammu. That we'll keep it forever. गृहिणी मीरा शैलेंद्र नाथ गौरवान्वित हैं। रन केरला रन में हिस्सा भी लिया। Very proudly. रन केरला रन में पार्टिसिपेट किया। बहुत एम्बिशन था, कोई भी ऐसा रन में मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी चांस मिला, ये लोग सब भागा उसपे। समय वाकई भाग रहा है, लेकिन यादों को सहेजना भी समय का तकाजा है। केरला फ्लेवर्स के लिए कन्नूर से कपिल धोरे और किशोर शर्मा के साथ मैं शाहिद अनवर। मंत्र मुग्ध कर देता है तय्यम, रंग बिरंगे केरल का रंग बिरंगा नृत्य। तय्यम की और बातें मनीष भट्टाचार्य जी के साथ। ये भविष्यवाणी हो रही है। देवता के भेष में बैठे कोल्लम भविष्यवाणी कर रहे हैं। लंबी कतार में लोग अपनी पारी के इंतजार में। आगे के बारे में बताता है। कुर्सी पर जो बैठा है वो कौन है? वो हम लोग इधर अम्मा देवी बोलते हैं। इसका नाम पेड़ियाट भगवती। वो तो इंसान है, आदमी है। उत्तर मालाबार की कन्नूर की ये खास प्रथा तय्यम यानी आराध्य की आराधना, कोल्लम यानी ईश्वर, जिनके सिर पर बड़ा सा मुकुट है, चेहरे पर गुलाल, सिंदूर और काजल की सजावट, नाक, गले और पैरों पर धातु के बड़े बड़े गहने। इधर केरला में कोलम बोलता है, मलबार में कोलम है ना। हम लोग
आपका साइड में तो ये भगवान मंदिर में एक पुजारी होगा, वो अंदर होगा। वो अपन को ये प्रसाद पिन्ना पूजा उसके अंदर से मिलेगा। म्यूजिक चंडा बोलता है, हम लोग केरला में चंडा बोलता है, आपको मालूम नहीं। आने वाला हर लम्हा खुशगवार गुजरे, इस चाहत से श्रद्धालु इस प्रथा को आज भी उसी शिद्दत से मनाते हैं। भविष्य की डोर किस मुकाम पर ले जाएगी ये तो वक्त के पन्नों पर लिखा होगा, लेकिन बीता हुआ कल आज भी कन्नूर वासियों की पहचान बना है। सारा दिन ये तेयम होगा, सारा दिन नाइट 6 बजे को स्टार्ट होगा, 6 बजे को स्टार्ट होगा, उसको मॉर्निंग 7 बजे कट होगा। तैयम के मंदिर प्रांगण से कपिल दोहरे, किशोर शर्मा और शाहिद अनवर के साथ मैं मनीष भट्टाचार्य जी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी के साथ और सुन रहे हैं 35वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान हमारा अभिनव आयोजन केरला फ्लेवर्स। इस प्रोग्राम और राष्ट्रीय खेलों के हमारे दूसरे प्रसारणों के बारे में अपनी राय हमें ng35air@gmail.com, एक बार फिर से दोहराता हूँ, ng35air@gmail.com पर मेल करना न भूलें। अब बारी है त्रिशूर चलने की और जानते हैं वहाँ दिनेश नामदेव किन किन से गुफ्तगू कर रहे हैं। त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ केरल संगीत नाटक अकादमी, केरल ललित कला अकादमी और केरल साहित्य अकादमी स्थित हैं। हमने त्रिशूर के सुगदन से बात की। सुगदन भी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से और विशेषकर त्रिशूर में इनका आयोजन होने से बहुत खुश थे। आपको मालूम है राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं आपके शहर में त्रिशूर में? हाँ जरूर मालूम है। अच्छा, आप हिंदी बोल लेते हैं। कहाँ रहे हैं आप? मैं पहले बॉम्बे में था 2-3 साल, बाद में 13-14 साल तक बारगाह में था, सऊदी अरब में था। मेरे दोस्त लोग थे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोस्त लोग था, इसलिए मैं हिंदी जानते अच्छे तरीके से। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको कि आपके शहर में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा सही चलेगा, मतलब हुकूमत से तरफ से बहुत अच्छा चल रहा है और एकदम धनाधन मुक्त, एकदम हैप्पी है सब लोग काम के लिए। तो बाहर से बहुत से राज्यों से लोग आ रहे हैं, उन्हें देखकर भी आपको अच्छा लग रहा है? आते हैं, अच्छा लग रहा है, जैसा आपका जैसा लोग बहुत लोग आते हैं, बहुत बहुत खुशी है, सब करते हैं, अपना देश में चल रहे, केरला में चल रहे के लिए सब हम सब लोग खुशी है। बहुत सब लोग आते हैं, जो मणिपुर से आया था बहुत अच्छा ये दिया था उन लोग के लिए, बस सब अच्छा देखते हैं। बाजार में घूमते समय हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले शंकर से हुई। शंकर यहाँ पान का व्यवसाय करते हैं और शंकर त्रिशूर में रहते हुए बहुत ही खुश हैं। शंकर, आप यहाँ त्रिशूर में कब से हैं? हमको हो गया 8 साल। अच्छा, शंकर यहाँ क्यों आए आप? त्रिशूर क्यों आए? कमाने के लिए आया हूँ, पेट अपना खाने कमाने के लिए आया हूँ। तो आपको यहाँ 8 साल हो गए हैं। हाँ। कैसा लगता है यहाँ पर? हमको अच्छा लगता है, हमारे गांव से भी अच्छा इधर है। इधर है शांति एरिया है, अपना कमाते हैं खाते हैं, किसी सब लोग इधर अपना बिजी रहते हैं, वो अपने अपने काम में लोग रहते हैं, इसीलिए हम भी इधर अपना खाते जीते हैं। त्रिशूर से मैं दिनेश नामदेव। केरल आएं और केले न खाएं, ऐसा कैसे संभव है? और फिर नवदीप सिंह का तो प्रिय फल केला ही है। केला बहुत लोगों का प्रिय फल है, फूड वैल्यू से भरपूर और स्वादिष्ट भी, खाने में भी आसान। आमतौर पर हमें कुछ ही किस्मों का पता है, परंतु हैं इसकी किस्में अनेक। कौन कौन सी जानते हैं केरला स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन का डायरेक्टर डॉक्टर के प्रतापन से। Banana, as you all know, that it is an edible fruit, botanically a berry, belongs to the genus Musa. Musa name came from Antonius Musa, a physician of Augustus' god. Augustus is an emperor. There are umpteen number of varieties. Here we have more than 100 odd varieties. Among those, few varieties are edible, like Nendran. Nendran is the long variety, which is the third staple food of Kerala, next to rice and tapioca. The Nendran variety is mainly used for culinary purposes, and it is used for making banana chips, which is very rigid, soft, tasty, when it is fried in coconut oil. We have red banana, which is the rarest fruit among the table purpose varieties, and this red banana is mainly used as fruit only. We have small varieties like Palayangkodan, Nyalipuvan, Kannan, Kumbilla Kannan, Padatti, and so many varieties which are very sweeter in nature. Nyalipuvan or Kumbilla Annan. These varieties are the tastiest table purpose variety which is used after each meal. Starts from breakfast, lunch and dinner. And of course, the common banana called Cavendish, widely cultivated all over the country. This banana variety is commonly called in northern India as Kela,
the most choicest variety as far as the Keralite is concerned is the Nendran variety. Rich in dietary fiber, it has a lot of carbohydrate, sugar, magnesium. It has a lot of potassium also. Those who are deficient of potassium can have a Nendran banana for their morning breakfast, along with a cup of milk and a boiled egg. And friends, Nendran banana of Kerala variety plus a boiled egg and a cup of milk is adjudged the best breakfast ever in the world by the Nutritional Association of America. The title of this program, The Flavors of Kerala, those who have come a long way from the northeast part of our country as well from J&K, as well the middle portion and the south and east of India, they'll be definitely tasting our Nendran banana variety as well as the chips which is made out of Nendran banana. The fiber portion, which is also used culinarily, the middle pseudostem is used as a good source of dietary fiber, as a nutritional source for kidney stone patients. A lot of byproducts are coming out of the fiber also. So totally, the whole plant, the leaf is used, the flower is used for culinary purposes, making a lot of sabjis. So altogether, banana is a wonderful plant, is the fruit of the heavens. We, the Keralites, enjoy all these varieties of banana, which are very rare in the other part of the country. पंकज अठावले लेकर आए हैं इस वक्त की खेल हलचल। The day started for Tamil Nadu with a double gold strike as S. Satish Kumar won the gold medal in the weightlifting 77 kg category, and then the Tamil Nadu table tennis men won the gold in the team event. After that, Punjab's Jasveer Kaur won the gold medal in the 63 kg weightlifting snatch and clean and jerk. Let's have a look at the medals tally till now. Haryana leading with 11 gold medals, 4 silvers and a bronze. Services just behind with 9 gold medals, 2 silvers and 4 bronze medals. Maharashtra at number 3 with 7 gold medals, 10 silvers and 3 bronzes, with the home team Kerala at number 4 with 16 medals, including 4 gold, 6 silver and 6 bronze medals. मीनू खरे और राजश्री बैनर्जी इस वक्त हैं कोच्चि में। स्टेडियम के लिए हम निकले और वेट कर रहे थे अपने व्हीकल का। एक खूबसूरत लड़की बड़ी बड़ी आंखों वाली हमें वहाँ मिली, जिसने मुस्कुराकर हमारी ओर देखा। माय नेम इज रहिता, आई एम फ्रॉम कोचिन ओनली। आप हिंदी बोल लेती हैं? हाँ, हिंदी बोल रही हूँ। अच्छा। थोड़ा से मालूम है मुझको हिंदी। सारे जहान से अच्छा हिंदू सितारा तुम्हारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुल एक मुस्के, हे दिल सितार तुम्हारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। केरल की खूबियों के साथ हमारी परिचय का सिलसिला जारी रहेगा। कोची से मैं राजश्री बैनर्जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, जय जय वंदे मातरम, जय जय वंदे मातरम, जय जय वंदे मातरम, जय जय आज इतना ही। कल केरला फ्लेवर्स के साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन हमें अपनी राय ng35air@gmail.com पर मेल करना न भूलें। अपने दोस्त महेंद्र सिंह लालस को इजाजत दीजिए। नमस्कार। राष्ट्रीय खेल केरला 2015